असल ज़िंदगी में इस तरह से होता है कि आप एक कमरे में 10 दिन किसी के साथ हो, क्या आपको सच्चा प्यार हो सकता है? I'm a very logical man. So for me, I don't think I can fall in love like that very easily. I need to see a lot of things, and 10 दिन थोड़ा सा short period of time है मेरे लिए. I can like someone, I can have a crush on someone, but I cannot love someone that's one. Did you had a crush with someone like I had that situation with Azma, but on the last day of the show, जब मैंने engagement में मना किया था, she said no to meeting outside. So yeah, she was my one side of person कि मैं इसको बाहर लेके जाऊँ, but वो नहीं हो पाया. So, क्या बोलते हैं, good things have to end, right? yes, Yeah. if she tried to contact you, And I'll be just friends. just friends, Just friends. Yeah. not more than that. So I'm a person who can never stop achieving. मुझे top की भी top पे पहुंचना है. What's your biggest motivation? डर. Hi, my name is Prithvi Singh and you're watching Bazooka. So सबसे पहले बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, जितनी भी हमारी बातचीत हुई. आई होप यू एंजॉय दिस चैट शो. फर्स्टली, हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन विथ यू? हाउ इज द सिचुएशन राइट नाउ? हाउ इज थिंग्स गोइंग ऑन? रोडीज एंगेज, ये जो सफल है, लिस्ट की सफल है, बहुत आगे तक जाए आई बिलीव. बट आपसे जानना चाहूँगा, रोडीज एंगेज, हाउ इज दिस थिंग दैट हैपेंड फॉर यू? So yeah, life has been different lately. काफ़ी different. मैं से पहले corporate में काम करता था and now I'm here, I'm doing this. It's really fascinating for me. I've always wanted to work in the entertainment industry. अब आके अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा. So Roadies was like an icebreaker for me to enter this field. Roadies for me didn't turn out to be that good in the start, but later on as my PI was released, people started to love me and started to be by my side. मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा and that gave me confidence that I can maybe continue in this field. Because since मेरा रोडीज का पे इतना अच्छा नहीं गया था, I thought that this is probably over and this is not for me. But it turned out just fine. क्या बोलते हैं, like जब भगवान होते हैं साथ तो सब चली जाता है मेरे ख्याल से. Engaged for me was very random. मेरा जब पीआर रिलीज हुआ था उसके एक हफ्ते बाद ही मुझे यहाँ से कॉल आ गया था to go to the show. And I did. I accepted the offer and I went ahead with it. काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था अंदर मेरे लिए काटना. 10 days captive. मैंने पहली बार किया था कुछ ऐसा कुछ. Lot of frustration, lot of anger, sadness, and overflow of emotions were there. But I think I did good in the show and I came out very happy. Not happy, मतलब क्या बोलते हैं, इतना भी हैप्पी नहीं कि हाँ लाइक मैंने एंगेजमेंट तोड़ दिया, मैं खुश हूँ, वैसे नहीं. बट जस्ट हैप्पी इन जनरल दैट आई वाज एबल टू डू वन मोर थिंग. मुझे लोग कहीं और देख पा रहे हैं एंड आई एम रियली प्राउड एट माई सेल्फ एंड या. Did you end up well? Do you believe like you would have done more better, or are you happy with the journey? I'm talking about engaged. So in the first few days I didn't really know what was going on, very honestly speaking. So I didn't know how to act, didn't know what to do. So first of my days were very slow थोड़े से, but उसके बाद as I understood how this goes on, फिर जाके मैं काफ़ी खुल गया and I started to do a lot more better. अगर हम बात करें क्या मैं बेटर कर सकता था, हाँ मैं अगर पहले स्टार्ट करता तो. कॉन्सेप्ट कैसा लगा एंगेज? क्योंकि ये अक्सर हमारे हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट में नहीं होता ऐसा कॉन्सेप्ट. ये बाहर के कॉन्सेप्ट को बना के एक हिंदी में परोसा जाता है, मुझे ऐसा लगता है. आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट जब आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में सुना कि इस तरह का कॉन्सेप्ट होने वाला है, where you can see so many people and especially उर्फी को मिलने मिलेगा. Right. So सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं. When you came to know about the concept, what was there in your mind? So when I came to know about the concept कि तुम्हारे पास 10 दिन है, 10 दिन में प्यार करो एंड एंगेजमेंट करो, मेरी फट गई थी. बट मेरे को लगा कि काफ़ी एक्साइटिंग है वैसे, मे बी आई माइट फाइंड समवन नाइस, क्या पता कुछ हो जाए. तो स्टार्टिंग में तो आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड विद हाउ द कॉन्सेप्ट वाज, बट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा था. एक घर में बंद होना, टू जस्ट हैव सम सेट ऑफ पीपल टू बी अराउंड एंड टॉक, फाइट, लव, काफ़ी एक्साइटिंग था. उर्फी जावेद से मिलना काफ़ी मेरे लिए रैंडम था बिकॉज आई डिड नॉट नो दैट शी वुड बी द होस्ट ऑफ दिस शो. एक्चुअली नो वन न्यू कि कौन होगा होस्ट एंड मैं बस गया, मेरे सामने आ गया, आई वाज लाइक वाओ ओके उर्फी इज हियर. तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे दैट आई एम फाइनली दैट आई एम इन दिस शो एंड दिस इज वर्थ गिविंग अ शॉट टू. Yes. Yeah. And how was Harsh? Harsh was very funny, as he should be.
हर्ष काफी जोक्स क्रैक कर रहा था, हमारी काफी बेइज्जती भी मार रहा था, बट ही ऑलवेज केप्ट अस वेरी एंटरटेन्ड, सो थैंक यू हर्ष फॉर डूइंग दैट। आपने काफी ही क्या बोलते हैं, एनर्जी रखी है हमारे घर पे, सो या थैंक यू फॉर दैट। हर्ष एंड उर्फी ने कोई एडवाइस दी आपको बिफोर लिविंग द शो, ड्यूरिंग द शो? शुरुआत में, सबसे पहले शुरुआत करते, शुरुआत में कोई आपको एडवाइस जो आपके साथ हो हमेशा? स्टार्टिंग में द एडवाइस दैट आई गॉट फ्रॉम उर्फी वाज दैट एक्सप्लोर, क्या पता कोई और घर में हो आपके लिए, एक के पास बंद होके मत बैठो, क्या पता कि कोई और अच्छा आपके लिए वेट कर रहा हो। So that was one thing starting में जो मुझे मिली थी, and over the time I understood one advice from them, which was कि family comes first, and you should always prioritize family and their decisions and their love for you, because life में लोग आके निकल जाते हैं, but family is constant, they can never leave you, ना आप उनको छोड़ सकते हो, आप अगर अच्छे आदमी हो तो, अगर बुरे तो क्या करें अब, but yeah, those were the advices given to me. What about हर्ष? हर्ष ने तो बस हंसाया है वैसे, हंसाया तो वो भी मेरे लिए एक सीख ही है, टू लाफ एट बैड प्लेसेस, ताकि आप अपने आप को खुश रख पाओ। थोड़ा करीब से जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिस तरह से ये 10 दिन में प्यार होना, एंड यू गेट एंगेज, यू डोंट गेट एंगेज, असल ज़िंदगी में इस तरह से होता है कि आप एक कमरे में 10 दिन किसी के साथ हो, क्या आपको सच्चा प्यार हो सकता है, हाँ या ना? इफ़ ना तो क्यों, इफ़ हाँ तो क्यों? ऑनेस्टली बताओ तो ह्यूमंस वर्क विद प्रॉक्सिमिटी, जो भी उनके पास होगा दे विल स्टार्ट टू लाइक दैट, वो तो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, क्योंकि एक सहारा बन जाता है, सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, तो लोग पिघल जाते हैं थोड़े से। बट अगर हम सो आई एम अ वेरी लॉजिकल मैन, आई थिंक लॉट फ्रॉम माई हार्ट एज वेल, बट मैं दिमाग से भी सोचता हूँ, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो थिंग्स कैन गेट रूइंड। सो फॉर मी I don't think I can fall in love like that very easily. I need to see a lot of things, and 10 दिन थोड़ा सा short period of time है मेरे लिए। Normally speaking तो शायद कुछ लोग ये कर पाते होंगे, but मुझसे ये नहीं हो पाता है। I can like someone, I can have a crush on someone, but I cannot love someone that soon. Yes. Did you had a crush on that game with someone like you're like कि हाँ इससे मैं बाहर भी मुलाकात, I want to hang out, I have to go to some restaurant or something like that. ऐसे कोई contestant थे आपको? I had that situation with Azma, but on the last day of the show, जब मैंने engagement में मना किया था, she said no to meeting outside. So yeah, she was my one side of person कि मैं उसको बाहर लेके जाऊँ, but वो नहीं हो पाया। So, Did you tried contacting her? Yes, we were friends outside. We spent some time, हम घूमे बाहर with friends, खाना खाने पे गए थे, chill किया हमने काफी ज़्यादा, but क्या बोलते हैं, good things have to end, right? Yes. Yeah. Is it on a good note or on a sad note? It's ended on a neutral note. Neutral note. But we still care for each other. कि अगर like कभी ज़रूरत होगी तो होंगे हम साथ में एक दूसरे के, नहीं तो we don't talk anymore. What about in future if she tried to contact you? So you'll be good friend, just friend or best friend? I'll be just friends. Just friends. Just friends. Yeah. Not more than that. No. What about future? How you are looking forward? Because you have done Roadies, you have done Engage, Splitsvilla is there on your list. Right, it is. Big Boss is something there on your list. Right. So how you are looking forward? Splitsvilla or Big Boss? So Splitsvilla, I want to do it because since I couldn't find love in this show or find a very actual connection in this show, I would like to go to that show and find out if I can have that kind of girl over there, मैं जिसके साथ I can spend time and I can actually make something out of it. इस शो में नहीं हो पाया तो वहाँ पे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा ये, so hopefully I get a shot for that. Big Boss, a dream come true. और नहीं बोलूँगा मैं इसके बारे में, but हाँ let's see. बिग बॉस में ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या है आपकी? बिग बॉस में ऐसा कंटेस्टेंट जाना या फिर सलमान सर के साथ फर्स्ट टाइम स्टेज शेयर करना? सब सलमान सर के साथ फर्स्ट टाइम स्टेज शेयर करना. For both you are excited about that? Yes, that and also being on the show because it's the मतलब like it's a very huge platform to be on that show. लोग इसके लिए क्या-क्या करते हैं, and I'm willing to work hard, willing to show everyone what I can do and what I'm capable of to be on that show. You know brother, मैंने पिछले मेरे करियर की अगर मैं बात करूँ 4-5 सालों की मैं बात करता हूँ, उससे भी लंबे जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो दिग्विजय का नाम
इस तरह से लोगों में फेमस हुआ, उन्होंने उनकी भी जर्नी काफ़ी कमाल की थी। उन्होंने स्पिट्सविला किया, देन उनके बाद बिग बॉस मिला। डू यू थिंक, डू कंपेयर सम योर जर्नी लाइक दैट, दिग्विजय टाइप? बिकॉज देर आर सो मेनी जो आते हैं इस मुंबई के शहर में, स्पिट्सविला करते हैं, फिर वहाँ से थोड़े से खो से जाते हैं, बट उस इंसान ने, मैंने देखा है कि वो उनकी जो जर्नी है, डू थिंक लाइक दैट? क्या आपकी सोच है इस तरह से? आई डोंट थिंक मैं ऐसा आदमी हूँ जो एक चीज़ के बाद थम जाता है। मैंने जब ये शो किया, इसके बाद मैंने 1-2 दिन में खुश था, उसके बाद मैं लग गया था काम पे टू वर्क फॉर माई नेक्स्ट शो। सो आई एम अ पर्सन हु कैन नेवर स्टॉप अचीविंग। मुझे टॉप की भी टॉप पे पहुंचना है। व्हाट्स योर बिगेस्ट मोटिवेशन? कोई सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है आपके? बिगेस्ट मोटिवेशन डर। डर? फेलियर is one thing that really keeps me in check, क्योंकि I want to become big, I want to be the best। उसके लिए अपने आप को मुझे थोड़ा सा डराना चाहिए कि भाई तू नहीं करेगा तो ये नहीं पहुंच पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। So that keeps me really motivated in my life। एंड सबसे बड़ा ड्रीम बैगेज क्या है? एक रहता है ना बैग जिसमें हम अपने सपने भरते हैं, सो इस सपनों का जो बैगेज रहता है उसमें किस तरह के सपने, बड़े बड़े सपने, आउट ऑफ द बॉक्स सपने जो आपने सोचे हो? एंड जिस तरह से मैंने सोचा है कि मैंने आउट ऑफ द बॉक्स, मेरा एक सपना है कि मैं किसी दिन विराट कोहली को इंटरव्यू करूं, तो आपका सपना जो एकदम बहुत बड़ा लेवल का हो, वो क्या हो? फॉर मी इट वुड बी कि सपने काफ़ी सारी चीज़ें, टू बी ऑनेस्ट। जैसे कोई ऐसे दोस्त या फिर 3 सपने? जैसे व्हेन आई वाज अ किड, आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी ग्रोइंग अप, सो आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल हैवंट लाइक्ड मी। तो आई हैड अ वेरी बिग ड्रीम ऑफ मेकिंग एवरीवन लव मी। आई मीन आई एम श्योर मेरे को सब प्यार नहीं कर सकते, वो नहीं हो पाता है, बट मैं चाहता हूँ कि सब मुझे जान पाए, सब मुझे देखे तो मुझे अच्छा फील करे। एंड वन थिंग जो मेरे है ड्रीम में इज दैट आई वांट टू हेल्प पीपल गेट बेटर इन लाइफ। ठीक है, वो मतलब वेदर इट बी फाइनेंशियल और मेंटल और फिजिकल, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ सो दे कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एंड दैट्स द फर्स्ट वन। यस, एंड फेमस तो होना ही है वो भी है, बिग बॉस की ट्रॉफी हाथ में देखनी। ओ हाँ, व्हाई नॉट, यस। काफी लोग का सपना होता है, मुझे भी ऐसा लगा कि आपका भी कुछ सपना इस तरह से होगा। मेरे आपको बताऊं तो ना, मेरे जो ड्रीम्स है ना, दे जस्ट लीड टू अ डायरेक्शन। मैं काफी इम्पल्सिव आदमी हूँ, आई वर्क ऑन माय इम्पल्सिव्स, एंड अगर रब को वो सही लगता है तो मुझे वहाँ तक पहुँचा देते हैं वो। बढ़िया, मेरे को जहाँ पे सही लगता है, मैं कोई एक ही स्पेसिफिक चीज को देख के नहीं अटकता हूँ। मैं बस एक ओवरऑल पिक्चर देख रहा हूँ एंड बस मैं उसको चेस करते जाता हूँ, एंड चेस करते मेरे सामने चीजें आती है एंड आई ग्रैब इट। राइट, या सो आई वर्क लाइक दैट। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, नेक्स्ट 15 years हाउ शुड पीपल रिमेंबर योर नेम? एज अ बेस्ट एक्टर, एज अ बेस्ट रियलिटी शो प्लेयर, और एज अ बेस्ट व्हाट शुड आई से, एज अ एक्टर, एज अ बेस्ट इन्फ्लुएंसर? यू हैव 3 options. Okay. Should I repeat? No, I got it. As a best Actor, influencer, reality show influencer. best actor, or a best reality show contestant? I'd go with the best actor Why? because it's it's what I wanted to do since I was a kid, but I never really thought that I could really do it. But now when I'm into this field, I want to become a very good actor. I want people to address me. I want people to acknowledge me, and I want to showcase my talent to the whole world. Reality show as well. मेरे को reality star भी बनना है क्योंकि I feel मैं इसमें बहुत अच्छे से कर सकता हूँ because I've got it all, and I don't shy away. I can show a lot of emotions. I'm ready to fight all the time. So yeah.